Chordata is classified. Chordata is classified on the basis of notochord or vertebral column. इसके प्रेजेंस और एब्सेंस से chordata का क्लासीफाई किया गया है. Similarly, cranium. This is the cranium, means brain is protected by the skull. इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे chordata को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है. That is, acraniata means cranium is absent but the notochord is present. Second is craniata, in which cranium as well as notochord both are present. Let us see the difference between acraniata and craniata. Acraniata, also known as protochord, or they are the lower chordates. In this, the chordates are small in size and found in C only. Whereas craniata, which are having the cranium, they are known as euchordates and they are the higher chordates. They are large in size and found both in water और ये land में भी पाया जाता है. Head and paired limbs इसमें present नहीं होते हैं. Whereas in this, head is fully developed and with two pairs of limbs were also seen. Exoskeleton absent होता है, इसमें exoskeleton present होता है. Notochord persistent and vertebral column absent होता है, whereas इसमें notochord is replaced by the vertebral column. Spinal cord भी present होता है. स्कल एंड क्रैनियम एब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम acraniata है. Whereas skull and cranium are fully developed, that why it is known as craniata. Pharynx with gill slits, pharynx with temporary और permanent gill slits and endostyle इसमें एब्सेंट होते हैं. किडनीज प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप का होता है, जबकि हायर कॉर्डेट्स में मीजोनेफेरिक और मेटानेफेरिक होता है. हार्ट जनरली एब्सेंट होता है या विदाउट चैम्बर्स होता है, वेयरएज इन हायर कॉर्डेट्स हार्ट इज 2, 3 इनकम्प्लीट और कंप्लीट 4 चैम्बर के हो सकते हैं. इरिथ्रोसाइट इज एब्सेंट इन दिस, वेयरएज इरिथ्रोसाइट इज प्रेजेंट. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही तरीके से होता है. जेनाइटल डक्ट्स इसमें एब्सेंट होते हैं. इसमें इन हायर कॉर्डेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली सीन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और जेनाइटल डक्ट आर प्रेजेंट. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ ए फ्री स्विमिंग लार्वा. इसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. वेयरएज इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, मीन्स विथ लार्वा. एंड जब वो विदाउट लार्वा होता है स्टेज, without larva stage, then it is known as direct development. This is the basic difference between craniata and acraniata. This is the example of protochordata or craniata, and this fish is the example of euchordata. Coming to the group A, acraniata, protochords, which are also known as lower chordates. They are generally marine. They are primitive. They lack the head, skull and cranium. Therefore, it is known as acraniata. And they are having a notochord during their life cycle. They are on the basis of this notochord presence throughout their life, in whether they are present in larval stage or all over the पूरे उनके जीवन काल में नोटोकॉर्ड किस समय प्रेजेंट रहता है, उसके बेसिस पे इसको 3 भागों में बांटा गया है. 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. हियर वी कैन सी हेमी मीन्स हाफ, सो दे आर हाफ कॉर्डेट्स. यूरो मीन्स टेल, सो दे आर टेल कॉर्डेट. एंड सेफेलो मीन्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड to the tail throughout their life. Example of hemichordata is balanoglossus, whereas Urochordata is Hadmarnia, and the example of Cephalochordata is Amphioxus. Hemichordata, hemi
मीन्स हाफ और आधा, एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्ड, लैटिन वर्ड कॉर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है रज्जु। इन दिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबेस्किस, सूंड या जिसे थूथन कहते हैं, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। नोटोकॉर्ड शॉर्ट होता है और ये प्रोबेस्किस में पाया जाता है। इसके 4 क्लास होते हैं, एंटेरोपनिस्टा, प्रोटोब्रैंकिया, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया एंड क्रेप्टोलीड। Again, Protobranchia is divided into 2 orders, Rhabdoluridia and Cephalodiscidia. आपके सिलेबस में ऑर्डर तक है, इसलिए हमें ऑर्डर तक पढ़ना है। Coming to the class 1 Enteropneustra, which is example is Balanoglossus, जिसको हम acorn worms भी कहते हैं। There are more than 70 species इसमें है। ये जनरली समुद्री जीव होते हैं, सैलो वाटर में रहते हैं और ये सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने देखा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबेस्किस, ये जो दिख रहा है ये सूंड लाइक स्ट्रक्चर है, या थूथन इसका हम कह सकते हैं, कॉलर, एंड द रेस्ट पार्ट इज द ट्रंक रीजन। वेल डेवलप्ड इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और नोटोकॉर्ड जो है इसमें स्टोमोकॉर्ड के रूप में प्रेजेंट रहता है। पहले ये कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड के समजात ना मानते हुए इसको अलग से दोनों के बीच में रखा गया है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देयर रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, दे लिव्स इन द बरोज, मतलब एक होल में रहते हैं, और ये जनरली फिल्टर फीडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहता है उसमें मेन करंट वाटर फॉर रेस्पिरेशन एंड फीडिंग। साथ ही साथ जो इसका प्रोबेस्कस है इसमें सीरिया प्रेजेंट्स होते हैं, जिससे कि अपना फिल्टर फीडिंग करते हैं। स्टोमोकॉर्ड जो है इसका शॉर्ट होता है और ये इस एरिया में प्रेजेंट रहता है, एंड म्यूकस इससे निकलता रहता है, जो कि थोड़ा जेली लाइक मटीरियल, मतलब चिपचिपा रहता है, जिसमें फूड पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं, और द गाइड्स फूड्स, जो कॉलर है वो इससे नीचे इसको फूड को भेज देता है और फिल्टर आउट द वेस्ट को बाहर निकाल देता है। इसलिए हम कहते हैं दे आर टेकिंग ए फिल्टर फीडिंग करते हैं। कमिंग टू द सेकेंड क्लास ऑफ हेमिकॉर्डेटा, दैट इज टेरोब्रैंकिया। ये टाइनी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। इसमें जनरली हम देखते हैं कि जो इसका प्रोबेस्कस है, दिस रीजन, ये सारे के सारे मॉडिफाइड हो गए हैं टेंटिकल्स में। उसके बाद कॉलर प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है बाय बर्डिंग। ट्रंक इसका शॉर्ट होता है, ये दिख रहा है हमको, ये शॉर्ट होता है, सैक लाइक। इसमें 1 या नो फेरेंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं, और बॉडी जो पूरा इसका है कवर्ड विथ अ प्रोटीन कोलेजन। इसका एग्जाम्पल है सेफेलर डिस्कस, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हम प्रोटोकॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हेमिकॉर्डेटा के सब फाइलम देख लिए हैं, उसके क्लासेस देख लिए हैं। नाउ कमिंग टू द यूरोकॉर्डेटा, इसमें भी क्रैनियम एब्सेंट होता है एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, तो पहले हम यूरोकॉर्डेटा देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। यूरो मीन्स पूछ या टेल, एंड कॉर्डा मीन्स रज्जू, तो इसलिए इसको टेल कॉर्डेट भी कहते हैं। दे आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ये जनरली समुद्र में पाए जाते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में। दे आर सेसाइल, और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। जो इनकी जो बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय सेलुलोज, जिसको कि हम ट्यूनिसिन कहते हैं, इसी कारण हम इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। दे आर हैविंग यू शेप्ड गर्ड, सिलो में एब्सेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, जनरली रेस्पिरेशन गिल से होता है। इनकम्प्लीट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस एक्चुअली बाय बर्डिंग। इसमें एक बहुत
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स जब लार्वा स्टेज से होकर के ये अडल्ट बनते हैं तो हम उनको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसमें हमने देखा नोटोकॉर्ड जो है लार्वा स्टेज में टेल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ये अडल्ट बनते हैं तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये डिसअपियर हो जाता है। मीन्स ये उल्टा हो जा रहा है। नोटोकॉर्ड जो है वो अडल्ट में एब्सेंट और लार्वा में प्रेजेंट हो जा रहा है, इसलिए इसमें रेट्रोग्रेसिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, वेरस मेटामॉर्फोसिस जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखा यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में, जो नोटोकॉर्ड है लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है, वो भी टेल में प्रेजेंट होता है। अडल्ट इसके सैक लाइक मतलब थैला लाइक होते हैं, ये सेसाइल होते हैं। इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि ट्यूनिक होता है, जो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव सेल्यूलोस युक्त एक बाहर में प्रोटेक्शन लगा होता है जिसको कि हम ट्यूनिक कहते हैं, इसी कारण हम इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल, कैसा है, सेसाइल है कि फ्री स्विमिंग है, अडल्ट इसका कैसा है बॉडी स्ट्रक्चर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेल एंड नोटोकॉर्ड इन द अडल्ट स्टेज, इसके बेसिस पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज एसिडिसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया। तो इसको अपन एक एक करके देखते हैं। Here you can see Urochordata. It is classified into Acidiaceae, Thalassea and Larvaceae. Acidiaceae is again divided into 2 orders, Enterogona and Lurogona. Thalassea is divided into 3 orders, Pyrosomidia, Doliolida and Salpidia. And Larvaceae is divided into again 2 orders, Endostylophora and Polystylophora. यूरोकॉर्डेटा का पहला क्लास है एसिडिसिया। इसको हम सी स्क्विड्स भी कहते हैं, क्योंकि जब ये उत्तेजित होते हैं तो ये जल की पिचकारी विसर्जित करते हैं, इसलिए हम इसको सी स्क्विड्स या फिर समुद्री पिचकारी कहते हैं। साइफन पाया जाता है जिससे कि ये पानी निकालते हैं, जल निकालते हैं पिचकारी की तरह। नोटोकॉर्ड एंड पोस्ट एनल्टेड इसके लार्वा स्टेज में पाया जाता है। ये जनरली मैरीन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, लेकिन अडल्ट इनके सेसाइल होते हैं। ट्यूनिक प्रेजेंट होता है जो कि एसेलुलर मैट्रिक्स से बना रहता है। इसमें 2 ओपनिंग पाए जाते हैं, जैसे दिख रहा है इनहेलेंट एंड एक्सेलेंट साइफन, जिससे ये पिचकारी जैसे पानी निकालते हैं। नेक्स्ट दे आर हर्माफ्रोडाइट, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। इनको 2 ऑर्डर में बांटा गया है, एंटेरोगोना एंड ल्यूरोगोना। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड टेल में रहता है, लेकिन जैसे जैसे अडल्ट होते हैं तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से डिसअपियर हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हर्डमानिया, एसिडिया एंड सियोना। एंटेरोगोना में बॉडी, थॉरेक्स और एब्डोमेन, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। न्यूरल एंड वेंट्रल टू गैंग्लियन होते हैं। इसमें सिंगल गोनेड पाए जाते हैं जो कि इंटेस्टाइनल लूप के नीचे होता है। लार्वा विथ 2 सेंस ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सेंस ऑर्गन का नाम ऑसिली एंड ओथोलिथ है। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दिस इज द एसिडिया। वेर जो दूसरा ऑर्डर है ल्यूरोगोना, इसमें बॉडी आप यहाँ देख सकते हैं एकदम कॉम्पैक्ट होता है। इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट। न्यूरल ग्लैंड इसमें डॉर्सल होता है और लेटरल होता है, वेरस इसमें हमने देखा था न्यूरल ग्लैंड जो है वेंट्रल होता है। गोनेड्स इसमें 2 और मोर एम्बेडेड इन मेंटल वॉल हो सकते हैं। लार्वा विथ ओनली 1 सेंस ऑर्गन ओथोलिथ होता है, जबकि इसमें 2 होते हैं। नाउ द सेकेंड क्लास इज थैलेसिया। इसमें हम देख सकते हैं ये बैरल शेप्ड का, बैरल शेप मतलब एक ढोलक आकार में आपको दिखाई दे रहा है। दे आर द फिल्टर फीडर्स
इसमें भी इनहेलेंट और एक्सेलेंट साइफॉन पाया जाता है जो एकदम अपोजिट एंड में होता है। इसमें 2 जनरेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स पाए जाते हैं, पहला सॉलिटरी और दूसरा कॉलोनी, मतलब दोनों ही फॉर्म इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, जनरली मैरीन होते हैं। बॉडी थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूनिक मसल बैंड से बना होता है जैसे दिख रहा है। और जो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड है वो टेल में प्रेजेंट रहते हैं इन द लार्वल स्टेज, लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है तो ये एब्सेंट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेल्पा एंड डोलोरियम। इसके थ्री ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, पायरोसोमीडिया, डोलिडिया एंड सल्पिडा। इसको अपन एक एक करके देखते हैं। हियर यू कैन सी ऑर्डर 1 इज पायरोसोमीडिया, नो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जो दिख रहा है। सेकेंड इज डोलिडिया, लार्वा विथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, इसका एग्जाम्पल डोलोलियम है। और सल्पिडिया, टेल्ड लार्वा इसमें एब्सेंट होता है, एग्जाम्पल है सल्पा। नेक्स्ट कमिंग टू द क्लास 3 दैट इज लार्वेसिया। थर्ड क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेटा इज लार्वेसिया, एपेंडिकुलरेसिस भी कहते हैं। इसका जो ट्रंक है दैट इज ओवल इन शेप एंड दे आर हैविंग ए लॉन्ग टेल, जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है और ये थ्रू द लाइफ प्रेजेंट रहता है। बॉडी कवर्ड रहता है विच जिलेटिनियस लेयर से and they are having the 2 orders, Endostylophora and Polystylophora. Endostylophora order में house bilaterally symmetrical with 2 apertures, pharynx with endostyle present होता है, इसका एग्जाम्पल appendicularia है। whereas order 2 में Polystylophora house bilaterally symmetrical single aperture होता है, pharynx without एंडोस्टाइल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द हाउस और इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कमिंग टू द थर्ड सबफाइलम दैट इज Cephalochordata. The third subphylum is Cephalochordata. It is most advanced protochord. इसमें नोटोकॉर्ड वेल डेवलप होते हैं, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और ये पूरे टेल से लेके हेड तक रहते हैं और हेड से लेके टेल तक रहते हैं। गिल स्लिट्स इसमें बहुत सारे रहते हैं, अप टू 100। डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, दे आर जनरली मैराइन, समुद्र रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ ए फिश लाइक अपीयरेंस, मछली के आकार के दिखते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज नॉट सिन। मेटामर जो हमने एनिलिडम में भी देखा था, इस तरीके से लाइंस मेटामरिज्म प्रेजेंट होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसका एक ही क्लास है लेप्टोकार्डिया। दिस इज द क्लास लेप्टोकार्डिया, जिसका मतलब होता है कार्डिया मतलब कार्डियो से रिलेटेड, दैट मीन्स स्मॉल हार्ट। इसमें कोई ट्रू हार्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसको लेप्टोकार्डिया कहते हैं। सिंगल पल्सेटिंग वेसल्स प्रेजेंट होता है, इसमें कलरलेस ब्लड पाए जाते हैं। इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है, एक्सक्रिएशन और लिम्स भी नहीं पाए जाते, सिर्फ इसमें नोटोकॉर्ड ये दिख रहा है पाया जाता है थ्रू आउट फ्रॉम हेड टू द टेल। डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट, गिल स्लिट्स आर present. This is the amphioxis. तो we have learned the Acraniata. इसके 3 सबफाइलम्स हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया है अप टू ऑर्डर विथ एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैनिएटा या यूकॉर्डेटा दैट इज द हाई कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे।